Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy video. So in this class we came with the topic codification. The topic name is codification. Okay. So what is this codification? Means whenever we are bringing any material, we are making the small label over the container. Okay, for identification of easy purposes we are making the label indicating that one word, two word, three words, or some code system you are making. Is it right? So similarly in pharmaceutical field also there are number of materials, there are number of products are available. So those will not be easy to identify, or you are not making to properly identification. So hence what we are making the some codification, and these codification may be used for the in the rack system or in the block system, may be used based on the quantities which are available in the storage. So this codification is mainly helpful for the manufacturer, because enormous number of the materials will be there, raw materials will be there, solvents will be there. For easy assurances we are using this code system, making the label and identification code will be used. And even in wholesaler also there are number of company stocks will be there. They are making, or they are separating into the company wise or the product wise in a rack with the given spaces. Even in retailer also there are number of company, more than 100,000 companies product will be available in small premises of the retail store also. In that condition also it is very difficult to identify which product where you kept. So hence if you make a code system, so it will be easy for the picking of the particular item when the prescription is came to you people. So that is why this codification is very much important to specifically when we are using, when the large number of items are there, large number products are there, this codification will be helpful to remove the difficulty in the particular item. ओके कोडिफिकेशन मतलब क्या हो जाता है, कोड बनाते हैं ना उसको बोलते हैं कोडिफिकेशन। जैसे समझ लीजिए एक प्रोडक्ट है, हम लोग आसान से पहचान सकते हैं। अगर 100 प्रोडक्ट रखने के बाद ये कौन सा है वो कौन सा है, हर बार हम लोग ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ता। इसलिए एक कोड सिस्टम बना लिए तो हमको आसान हो जाता। एक क्लास से हम लोग कोडिफिकेशन के बारे में हम सीख रहे हैं। So what is an meaning of codification? Codification is defined as a process of assigning the code number, the code number or a code symbol to a particular material for easy identification. Okay, for easy identification. So what are the advantages of this codification? Okay, helps in quick identification items. ये जो advantages majorly क्या हो जाता है, कोडिफिकेशन बना लिए तो हम लोगों को बहुत जल्दी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। हेल्प्स इन ग्रुपिंग द सिमिलर आइटम। कोडिफिकेशन बनाने से क्या हो जाता है, एक एक ग्रुप अलग बन जाता है। सो हमारे को आसान से मालूम हो जाता है। अगर समझ लीजिए 1000 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट एक तरफ यूज़ करते हैं तो 100 प्रोडक्ट अलग यूज़ कर सकते हैं और 100 प्रोडक्ट अलग यूज़ के लिए है। तो ये तीनों का सेपरेट ऐसा बना लिया तो पूरा हज़ारों प्रोडक्ट हमको आसानी से मिल जाता। उसको जो बोलते हैं ग्रुपिंग कोड सिस्टम। टू हेल्प्स इन द अवॉइडिंग द डुप्लीकेशन। समझ लीजिए आप जो भी ऑर्डर देना है तो एक ही जगह पे रहे तो वो स्टॉक है कि नहीं बोल के आराम से मालूम हो जाता है। अगर आज एक दिन इधर रखे कल उधर रखे बोले तो हमको क्या समझते हैं, उधर स्टॉक खत्म हो गया, हम लोग ऑर्डर देना बुलाया जैसा हो जाता है। इसलिए डुप्लीकेशन कम हो जाता है। जैसे कोड सिस्टम बनाए तो हम जो प्रोडक्ट रखना है उधर ही रख देते, सो उससे आसान हो जाता है। दोबारा ऑर्डर या डबल ऑर्डर देने से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। And helps in avoiding the confusion. This is also very much important. Okay, so if I present or somebody is present also easily locate the product and he can pick the things. So अगर हम रहे तो, अगर नहीं रहे तो भी कोड के सिस्टम रहे तो, अगर कोई प्रेजेंस रहे तो आराम से निकाल को उन्हें दे सकता है। इसलिए कन्फ्यूजन जो भी रहता है वो निकल जाता है। हेल्प्स इन फिजिकल काउंटिंग, ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये जो प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट इधर रखे बोले तो इसका प्रोडक्ट का क्वांटिटी कितना है बोले ईजी से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 टैबलेट का 10 स्ट्रिप्स एक बॉक्स में है बोले तो उसमें जैसे ही बॉक्स खोले तो आपको मालूम हो जाता है 10 स्ट्रिप है, 5 स्ट्रिप्स है, 6 स्ट्रिप्स है बोल के मालूम हो जाता है। इसलिए बोलते हैं फिजिकल काउंटिंग बोलते हैं। एंड हेल्प्स इन द कंप्यूटराइजेशन ऑफ स्टोर रिकॉर्ड्स ऑल्सो।
अभी समझ लीजिए ये जो डॉक्यूमेंट है ना कंप्यूटर में हम लोग इंक्लूड किया, तो हम बैठे जगह पे बोल सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है उधर है कि नहीं बोल के चेक कर सकते हैं। अकाउंट सिस्टम के लिए भी बहुत आसान हो जाता है, प्रोडक्ट जो लोकेटर करे रहता है वो भी आराम से मालूम हो जाता है। सो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर कोडिफिकेशन, नोइंग दिस एडवांटेजेस, थोड़े बहुत जो मेथड अडाप्ट किया फार्मास्यूटिकल फील्ड में वो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। मेथड्स ऑफ कोडिफिकेशन, द फर्स्ट मेथड इज़ अल्फ़ाबेटिकल मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान मेथड है। सो यहाँ पे क्या अल्फ़ाबेटिकल सिंबल और लेटर यूज्ड। अब समझ लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, टैबलेट है बोले तो उसका जो कोड बनाते टैबलेट का टी बना देते, उसके बाद उसमें जो भी ड्रग्स आता है टैबलेट में, जैसे समझ लिए थायमिन हाइड्रोक्लोराइड है, फर्स्ट का वर्ड है टी, टी मतलब क्या हो जाता है टैबलेट है, उसके बाद जो क्या है थायमिन हाइड्रोक्लोराइड, TH बोले तो थायमिन, HCl बोले तो HC, ऐसा कोड बना लिए तो आपको बहुत ही आसान हो जाता। और एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, कैप्सूल, कैप्सूल का कोड C बना देते, अगर यही थायमिन कैप्सूल में आ रहा है बोले तो CTHHC बोले, जैसा इस तरह से बना लिए तो कोई भी अगर प्रेजेंट रहे तो आराम से उनको पहचान हो जाता, उनको मालूम हो जाता, आराम से निकाल सकते हैं। और सेकेंड मेथड ऑफ कोडिफिकेशन इज अ न्यूमेरिकल मेथड और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए साइंटिफिक मेथड। यहाँ पे क्या है, डोसेज जो भी रहता है ना उसका यूजेस के ऊपर रहता है। समझ लीजिए एक ड्रग है वो यूज़ कर रहे हैं हम लोग CNS का कैटेगरी में, और समझ लीजिए CVS का एक कैटेगरी अलग है, डायबिटीज़ अलग है, तो इससे क्या हो जाता है जो बीमारी है बीमारी के संबंध के जो मेडिसिन रहता है उसके अलग बना देते। सो उसके लिए कोड बनाते। अभी CVS का यूज़ कर रहे हैं बोले तो उसका 2 नंबर रखे, हम CNS को 1 नंबर रखे, डायबिटीज़ को 3 नंबर रखे। ये रखने से क्या हो जाता है हमारे को मालूम हो जाता है, जैसे ये 3 नंबर दिखता है वो ये जो ड्रग है डायबिटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे 2 नंबर दिखता है ये कार्डियोवैस्कुलर के लिए है, ये यूज़ कर सकते हैं, 1 नंबर दिया तो वो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए जो ड्रग है। इसके अलावा अगेन सब डिवाइडिंग द कोड सिस्टम, मतलब एक मतलब एक का ग्रुप क्या है CNS है, उसके बाद और एक नंबर जो भी ड्रग आता है उसको नंबर दे देते हैं, उसके बाद और एक CNS का ड्रग है एक कॉमन रहता है 2 नंबर अलग देते हैं। इस तरह से क्या हो जाता है एक जैसे ही देखते हैं ना वो ये जो ड्रग है CNS के लिए यूज़ आता है, इसके अंदर जो ड्रग है ना जो भी अलग अलग CNS का ड्रग यूज़ करते हैं ना उसका कोड देते हैं। सो C1 स्टैंड्स फॉर क्लियरली इंडिकेटिंग that the drug is used for the central nervous system, whereas the D that is 1 2 3 is the related to drugs you are assigning that। इससे क्या हो जाता है कोई भी रहने दो बहुत आसान से पहचान सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल मेथड, थर्ड मेथड इज अल्फा न्यूमेरिकल मेथड, मतलब क्या हो जाता है अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल मेथड दोनों जोड़ को ये जो बनाते हैं ना उसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिकल मेथड। ज़्यादातर जो ज़्यादा प्रोडक्ट रहता है बहुत स्टॉक्स बहुत ही क्वांटिटी में रहता है ना वो टाइम पे ये दोनों मेथड यूज़ करके हम लोग कोडिंग बनाते हैं। समझ लीजिए A1 है, A इज़ अल्फ़ाबेटिकल, 1 इज़ एन कोड सिस्टम, इसके अलावा जो भी आता है उसको ग्रुपिंग करके चले जाते हैं, सो आसानी से पहचान हो सकता है। लास्ट मेथड इज़ लोकेशन कोडिंग। लोकेशन कोडिंग मतलब ये ज़्यादातर इंडस्ट्री में आता है, जैसे रॉ मटेरियल एक ब्लॉक ए ब्लॉक इधर है, B ब्लॉक इधर है, C ब्लॉक इधर है, D ब्लॉक इधर है, मतलब ब्लॉक के हिसाब से स्टॉक रखे रहते हैं। एक्स ड्रग जो भी है ना चारों ब्लॉक में रहता है एक्स ड्रग, लेकिन हम लोग मेंशन करना पड़ता है एक्स ड्रग का ये ब्लॉक का रॉ मटेरियल ला लो बोले जैसा, तो उसके लिए ये जो बनाते हैं ना लोकेशन कोडिंग बोलते हैं। समझ लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ, ये जो भी रहता है बिग स्टोरेज के लिए रहता है ब्लॉक A RCR नॉर्थ, मतलब रायचूर का नॉर्थ सेक्शन में ये जो एक्स ड्रग है उधर से लाओ ब्लॉक A से, ओके। सेम ड्रग स्टॉक भी रहता है ब्लॉक में रहता है रायचूर RCR साउथ का, ऐसा ब्लॉक और उसका एरिया वाइज से उसका जो स्टॉक रहता है वो लाने के लिए ये जो कोड बनाता है ना उसको लोकेशन कोडिंग बोलते हैं इसको, ओके। कहाँ पे है, ओके, एक ही सिटी में दूसरी जगह पे लोकेशन करे रहते स्टोरेज के लिए, ओके, उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं लोकेशन कोडिंग सिस्टम। इसमें जो है ना 3 तरीका का एग्जांपल्स आता है अगेन लोकेशन कोडिंग। फर्स्ट इज फिक्स्ड लोकेशन, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं रहता वही लोकेशन में रहता है, ओके। सो आइटम वाइज और सप्लायर वाइज और यूज वाइज रहता है, इसमें भी 3 रखे का रहता है। आइटम वाइज बोले तो जो किसके लिए आता है वो उसके वाइज, और कैसा है सिरप बॉटल है, कैप्सूल है और टैबलेट है, इंजेक्शन, उसका आइटम वाइज बोलते हैं उसको। सप्लाइजर वाइज मतलब कहाँ से लाया आप,
सो उसका जो एक्स सप्लायर है बोले तो एक्स का पूरा प्रोडक्ट एक तरफ, वाई का रहे तो वाई का अलग रखते हैं, ऐसा रखते हैं ना, उसको सप्लायर वाइज बोलते हैं। यूज़ वाइज मतलब आपका जो मेडिसिन है, स्टॉक है, वो कौन से यूज़ के लिए रखते हैं उसका अलग तरफ से रखते हैं ना, उसको बोलते हैं फिक्स्ड लोकेशन। समझ लीजिए ब्लॉक ए में है, यूज़ वाइज का बोले तो कौन सा यूज़ का है उधर रखे रहे जैसा। ओके, सो रैंडम लोकेशन, वर्ड इज रैंडम, मतलब इधर एक उधर एक इधर एक रखते हैं ना, उसको रैंडम बोलते हैं। जैसे समझ लीजिए एग्जाम्पल, कॉमनली मेडिकल स्टोर रहता है, रिटेल स्टोर में, वहाँ पे कैसा रहता है आप देखिए, दुकान में देखिए तो कितना रैक्स में रहता है, जब डब्बा अलग अलग रखता है, जैसे कोई देखे तो हमको कैसा निकालता है इतना आसान से बोले जैसे दिखता है, इज इट राइट। सो बहुत ही मुश्किल हो जाता है जैसे बाहर के लोग देखे तो, लेकिन जो प्रोफेशन में रहता है ना उनको मालूम हो जाता है, जैसे प्रेस्क्रिप्शन आता है उसको देखते हैं 2 सेकेंड में आपको जो प्रोडक्ट निकालना है निकाल के दे देते हैं, हाई के नहीं है बोल के भी पूरा बोल देते हैं, उसको बोलते हैं रैंडम लोकेशन। एंड यूजुअली दिस मेथड विल बी अडॉप्टेड इन द रिटेल स्टोर। थर्ड वन इज द जोनल लोकेशन, बल्क जोन और स्पेयर पार्ट्स जोन और द कंज्यूमेबल जोन। ये जोन मतलब क्या हो जाता है, यूसेज के हिसाब से, ओके, यूसेज के हिसाब से जोन वाइज भी बना ले सकते हैं। ओके, इस तरह से 4 मेथड है जो कॉमनली अडेप्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोडिफिकेशन। सो एक क्लास से हमारे को सरल से मालूम हो कोडिफिकेशन का डेफिनेशन क्या है, उसका जो एडवांटेजेस है, और उसके बाद जो कितना मेथड्स है उसमें अल्फ़ाबेटिकल मेथड कौन सा है, न्यूमेरिकल मेथड कैसा रहता है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल मेथड कैसा है, लोकेशन कोडिंग कैसा रहता है, बहुत आसान से हमने समझाया। समझता हूँ ये क्लास से आपको बहुत सरल से आपको कोडिफिकेशन मतलब क्या हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।